Hello students. Today we will discuss about Python classes and object. So basically what is the definition I will discuss one by one. Python is an object oriented programming language. Almost everything in Python is an object with its properties and methods. A class is like an object constructor or a blueprint for creating objects. That means we have to focus on objects. Okay, so object will be created from a class. That means the primary entity will be a class, then we'll create an object and we'll proceed. Okay, so let's take this example. By this example, you will have a clear cut idea what is class and what is object. Here, what is the program I have written for to to calculate the area of a rectangle using class and object. We also can do it without using class and object, but let's see how is it getting uh, how is it giving output if I am using class and object. Okay, so what have I done here? I have written the first statement class rectangle. Okay, class rectangle. That means this is the syntax of writing a class. You have to write the class which is a keyword, then name of the class. I have given name as rectangle. Then a function I have written, and two functions I have written. Okay, the first function I have written set dimensions. Self. Okay, remember if you are declaring a function inside a class. Okay, so there will be parameter like I was saying the arguments here. Two argument is there. Self is written because this belongs to this class. This data belongs to this class. So that's why self is written. Okay, so self dot length will be length, self dot width will be width. So this is a function, and another function is calculate area where the self will be a parameter and it will return self dot length, self dot width. So basically here what I have done, I have included two functions. One is set dimension, one is calculate area. These two functions belong to this class rectangle. Then in this step, I have created an object, and the name of the object is rect. So it is the very important point. The moment you are done with the class, then come to creation of object. How to create an object? This is the syntax for creating an object. So write the name of the object, whatever you want to give. Then write the name of the class from where you want to create the object. Suppose here हम rectangle class का object बना रहे हैं. So the object will be my given name is rect, and this is the rectangle class. Then ये ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट हम लिखते हैं रेक्ट डॉट सेट डायमेंशन में ये वाले फंक्शन को हम कॉल कर दिए और 5 और 4 पास कर दिए. देन प्रिंट में एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज हम रेक डॉट कैलकुलेट एरिया को कॉल कर दिए. कैलकुलेट एरिया का मतलब ये था, ये कॉल हो गया. तो देन रन करने के बाद मेरा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 20 आ गया. ओके, इफ आई विल चेंज द पैरामीटर, इफ आई विल मेक इट 8, it will come as 40. But the point of discussion is three things. The first one is creation of class, and I created a class named as rectangle. Then I created two functions inside the class. Then I created an object from the class, and through that object I assessed these functions. First I set these parameters, then I calculate the area. So in this way you can use class and object. And the definition, you remember, class is nothing but the blueprint for creating an object. Once an object is created, now the object is created rect. Okay, so using this object I can access this rectangle class whatever is there. But here there are two functions, I can add more data also. So the definition in simple word, the class is a रैपर. रैपर मतलब जो रैप करके रखता है. ठीक है, तो क्लास इज ए रैपर ऑफ
functions and data. जो फंक्शन एंड डेटा को एक ही जगह पे रैप करके रखेगा क्लास, और वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, और वो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम वो क्लास को असेस करेंगे। इतना ही हमको याद रखना पड़ेगा। तो ये व्हाट इज हैपनिंग हियर, हियर इनसाइड द क्लास only functions are there. I have not included in data. So going forward, I will include also data. तो एक क्लास में हम कुछ फंक्शन रख देंगे, कुछ डेटा रख देंगे, उसके बाद वो क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और थ्रू दैट ऑब्जेक्ट हम वो क्लास को असेस करने लगेंगे। इतना आपको सीखना है क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट। सो लेट्स सी अनदर प्रोग्राम। एक आता है इनिट फंक्शन। इनिट का नाम होता है इनिशियलाइज। ओके, सो इनिशियलाइज से इनिट ले लिए, और पहले एक अंडरस्कोर, बाद में एक अंडरस्कोर। ये फंक्शन होती है पाइथन का, इनबिल्ट फंक्शन है। ये फंक्शन पाइथन लाइब्रेरी फंक्शन है, ये समझ जाएगा। इट इज नॉट ए कस्टमाइज्ड और यूजर डिफाइंड फंक्शन। हम फंक्शन में क्लास में किए थे, दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक पाइथन की फंक्शन होती है जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, और सिस्टम फंक्शन बोलते हैं उनको, और दूसरी तरह के कस्टमाइज्ड फंक्शंस होते हैं जो हम खुद बनाते हैं प्रोग्राम करने के टाइम। ठीक है, ये जो इनिट वाला फंक्शन है ये कस्टमाइज्ड नहीं है, ये सिस्टम फंक्शन है। ठीक है, तो ये फंक्शन है क्या? सो बेसिकली दिस फंक्शन करता क्या है, इज इंस्टेंट मेथड that initializes a newly created object. It takes the object as first argument followed by additional argument. The method takes the object first argument self. ओके, ये जो मेथड में फर्स्ट आर्गुमेंट सेल्फ रहेगा बाय डिफॉल्ट, फॉलोड बाय एडिशनल आर्गुमेंट रहेगा। जैसे ये एग्जांपल पे हम दिखा रहे थे, सेल्फ है बाय डिफॉल्ट, और जो जो आर्गुमेंट चाहिए वो भी है। ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्लास वी हैव टू अंडरस्टैंड द बिल्ट इन फंक्शन, जिसका नाम है इनिट फंक्शन। ऑल द क्लास हैव ए फंक्शन। सब, ऑल द क्लासेस, जितना भी क्लास है, जो भी क्लास हम बना रहे हैं, सबके पास ए इनिट फंक्शन अवेलेबल है, विच इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड व्हेन द क्लास इज बीइंग इनिशिएटेड। अब जब भी कोई हम क्लास इनिशिएट करते हैं तो इनिट फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है पाइथन में। और ये इनिट फंक्शन आपको ना तो सी प्लस प्लस, जावा, कोई भी लैंग्वेज में ये नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इनिट वाला फंक्शन पाइथन का ही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वो इनिट फंक्शन का हम यूज देख रहे हैं, ये कैसे यूज होता है। सो लेट्स सी हाउ इट इज यूज्ड। सो देखिए, सो व्हाट आई डिड, आई रोट ए क्लास नेम्ड एज पर्सन। और वो पर्सन की क्लास में हम दो तरह का फंक्शन रख दिए। एक फंक्शन रख दिए इनिट वाला फंक्शन, जिसमें सेल्फ रहा और फास्ट नेम, दो आर्गुमेंट्स। और हम सेट कर दिए, अभी फास्ट नेम हो गया मेरा एफ नेम, लास्ट नेम हो गया मेरा एल नेम। उसके बाद और एक फंक्शन रख दिए जो हो गया मेरा प्रिंट नेम। प्रिंट नेम में हम सेल्फ को पास कर दिए। सेल्फ को पास करने का मतलब हो गया प्रिंट सेल्फ डॉट फास्ट नेम, सेल्फ डॉट लास्ट नेम, जो भी हम फास्ट नेम लास्ट नेम पास करेंगे। अगर हम यहाँ पास कर रहे हैं SATUIA एंड देन PANIGRAHI, सो अब प्रिंट नेम को रन करने के बाद सत्य पानी ग्रे बोल के आउटपुट आ जा रहा है। सो दिस इज यूजिंग इनिट फंक्शन, दिस इज नॉट यूजिंग इनिट फंक्शन। बेसिकली आपको इतना ही याद रखना है, क्लासेस जो होती है वो कुछ फंक्शंस और कुछ डेटा को रखती है, और जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम उस क्लास से, वो ऑब्जेक्ट ही वो क्लास को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, सो इस दौरान हमको नया नया कंसेप्ट क्लास में मिलेगा, जैसे कि इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। पहले इनहेरिटेंस को देखते हैं। इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस जैसे हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेड हुए हैं, वैसे भी एक क्लास के पास ये पावर है, वो एक दूसरी क्लास को इनहेरिट कर सकती है। जैसे कि क्लास ए हो गया मेरा, पेरेंट क्लास बोल सकते हैं उसको, और बेस क्लास भी बोल सकते हैं। और बी हो गया जो डिराइव हो गया, तो उसको हम चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं और डिराइव क्लास भी बोल सकते हैं। सपोज ए बी मेरा दो क्लास है, बी ए से डिराइव हुआ है, तो ए हो गया मेरा पेरेंट क्लास और बी हो गया मेरा चाइल्ड क्लास। लेट्स सी हाउ द प्रोग्राम will work in class and sorry, in inheritance concept. So for this I have written a program. Just I go through this program what I have written here. Here what I am doing, uh, okay, so the program is
ओके, सो ये हो गया मेरा इनहेरिटेंस का बेस्ट एग्जांपल। सो बी अटेंटिव। ये व्हाट आई एम डूइंग हियर, दिस इज ए class person. Okay, then like before, I have included init function and I have included print name function. So the both functions are inside the class person. In the very next moment, I am trying to print this. I'm passing the first name and last name. Then I'm doing inheritance. In that inheritance, this is the syntax you have to remember. Suppose you are using inheritance concept and you are this person is the parent class. That means the student will be child class and the argument will be the parent class. Here person is the parent class. So right here I'm writing here what is happening here. Child class is created. Child class is created by passing the parent क्लास नेम इन द आर्गुमेंट। आपको ये दिख रहा होगा, आर्गुमेंट में हम पेरेंट क्लास का नेम पास करते हैं। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट क्लास हो गया चाइल्ड क्लास, और उस कहाँ से चाइल्ड डिराइव हुआ है, पर्सन क्लास से डिराइव हुआ है। तो वहां पे हम ऐसे कर दिए, इनिट वाला फंक्शन में लिख दिए एफ नेम लास्ट नेम, और एक सुपर फंक्शन यूज हुआ है। सुपर फंक्शन का हम यूज आपको बोलेंगे सुपर फंक्शन क्यों यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद हम एक डेटा रख दिए जो ग्रेजुएशन ईयर इक्वल टू 2019, ठीक। देन और एक फंक्शन हम रख दिए वेलकम। वो फंक्शन में हम ये वाला ऑब्जेक्ट मतलब सेल्फ को पास कर दिए, तो ये प्रिंट मैसेज में आएगा वेलकम सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम सेल्फ डॉट लास्ट नेम टू द क्लास ऑफ सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन ईयर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्टूडेंट वाला चाइल्ड क्लास है वो सबको एक्सेस कर सकता है। मतलब जैसे कि हम देखिए वाई स्टूडेंट नेम पास कर दिए और वाई डॉट प्रिंट नेम और वाई डॉट वेलकम। जो वाई जो अब ये वाले लाइन पे देखिए वाई जो है दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। कैसे पता चला ये ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास है, लिखा हुआ है ना, वाई जो है वो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो स्टूडेंट क्लास का है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम स्टूडेंट क्लास का फंक्शन जो है प्रिंट, वो प्रिंट नेम सॉरी स्टूडेंट क्लास का जो फंक्शन है वेलकम उसका भी तो एक्सेस कर रहे हैं, और प्रिंट नेम जो फंक्शन है वो पेरेंट क्लास का है। इसका मतलब ये हुआ जो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्लास से बना हुआ है वो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्लास को एक्सेस कर सकती है, मतलब चाइल्ड क्लास को एक्सेस कर सकती है, उसके साथ पेरेंट क्लास को एक्सेस कर सकती है। तो इस ये दो लाइन में हम कैसे लिखेंगे, द ऑब्जेक्ट created from the object created from a child class can access the parent class also as well as the child class। मतलब जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है वो चाइल्ड क्लास को तो एक्सेस कर ही सकता है, उसके साथ साथ वो पेरेंट क्लास का जो भी फंक्शंस और जो भी डेटा है उसको भी एक्सेस कर सकता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो पेरेंट क्लास को भी एक्सेस कर सकता है। तो यही होती है इनहेरिटेंस। हम दो क्लास बना दिए, चाइल्ड क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना दिए और चाइल्ड क्लास की ऑब्जेक्ट के थ्रू से हम पेरेंट क्लास को कॉल करने लग गए, पेरेंट क्लास को एक्सेस करने लगे। तो ये इसका मीनिंग ये हुआ कि जो चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास से डिराइव हुआ है वो पेरेंट क्लास का कोई भी डेटा हो कोई भी फंक्शन हो उसको यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। अब इतना हम याद रखेंगे तो आगे चल के प्रोग्रामिंग के टाइम मतलब प्रोजेक्ट के टाइम कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म आती है। पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल मीनिंग है टेकिंग मेनी फॉर्म्स। पॉली मतलब बहुत होती है, तो बहुत सारे फॉर्म्स लेने का मतलब ये हुआ कि एक ही आदमी, जैसे एग्जांपल ले जाइए, आप घर में आपका रोल कुछ अलग है, स्कूल में आप स्टूडेंट है, दोस्त लोग के साथ आप फ्रेंड्स है, तो आप पर्सन आप ही है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपका रोल चेंज हो जा रहा है। इस तरह प्रोग्रामिंग में भी एक ही फंक्शन है जिसका नाम है लेन फंक्शन।
उसको हम डिफरेंट डिफरेंट तरह से डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज करते हैं। तो ये वाला फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ले रहा है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन का पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि ये लेंथ वाला फंक्शन हम अगर स्ट्रिंग में अप्लाई करेंगे तो स्ट्रिंग का लेंथ देगा, टपल में अप्लाई करेंगे तो टपल का कितना नंबर है वो देगा आउटपुट, डिक्शनरी में भी अप्लाई करेंगे तो रिटर्न द नंबर ऑफ की वैल्यू पे देगा। तो सेम चीज हो गया, ये लेंथ सेम फंक्शन है, स्ट्रिंग में अप्लाई हो सकती है, टपल में हो सकती है, डिक्शनरी में हो सकती है। सो इट इज टेकिंग मेनी फॉर्म्स। सो ये जो टर्म है इसको हम फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। उसके बाद जो लास्ट कंसेप्ट है आज की क्लास का, वो हो गया क्लास का पॉलीमॉर्फिज्म। और क्लास का पॉलीमॉर्फिज्म हम डिस्कस करेंगे क्या होती है। जैसे फंक्शन का पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एक फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट काम करती है। जैसे क्लास का भी हो जाएगा, एक ही क्लास होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट रोल रोल करेगा। तो देखते हैं क्या होता है, उसका आउटपुट देख लेते हैं फर्स्ट। आउटपुट निकल के आ गया तो प्रोग्राम बिल्कुल सही है। तो प्रोग्राम का ड्राई रन करते हैं, एक एक लाइन में क्या क्या लिखा है देखते हैं। तो फास्ट हम क्या कर रहे हैं, एक व्हीकल क्लास बना दिए, और इनसाइड दैट व्हीकल क्लास टू फंक्शंस आई हैव इंक्लूडेड। एक हो गया मेरा ब्रांड और मॉडल, आज पैरामीटर आएगा जो इनिशियलाइज होती है इनिट फंक्शन में, लिख के हम लिख लिए डिफ, डिफ लिख लिए क्योंकि एक फंक्शन है। और उसके बाद भी और एक फंक्शन हम लिख दिए, डिफ मूव लिख दिए, जिसमें वो सिंपल मूव ही प्रिंट कर देगा। उसके बाद हम क्लास कार जो है वो व्हीकल का चाइल्ड क्लास बना दिए हम। उसके बाद हम बोट बना दिए और एक जो व्हीकल क्लास का भी है, और उसमें हम लिख दिए सेल प्रिंट करेगा, एक एक फंक्शन ऐड कर दिए। और हम प्लेन भी बना दिए, व्हीकल क्लास का है, उसमें हम लिख दिए फ्लाई करेगा। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि व्हीकल क्लास जो है वो कभी कभी कार जैसा काम करेगा, कभी बोट जैसा काम करेगा, कभी प्लेन जैसा काम करेगा। तो यू कैन से व्हीकल एक कॉमन क्लास हो गया जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कभी व्हीकल क्लास को हम पॉलीमॉर्फिज्म के बहाने हम कार बना देंगे, कभी बोट बना देंगे, तो कभी प्लेन बना देंगे। तो पॉइंट इज दैट एक्चुअल में पॉलीमॉर्फिज्म होता ये है कि एक ही मतलब यू कैन टेक एन एग्जांपल, द सेम क्लास इज यूज्ड इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। सो हियर हम जब कॉल कर रहे हैं तो देखिए हम कैसे कॉल कर रहे हैं। पहले तो हो गया मेरा क्लास कार हो गया, क्लास बोट हो गया। ये पास मतलब अगर आप कोई क्लास लिख दी है और उसमें कुछ आप लिखे ही नहीं, मतलब ये जो कार वाले क्लास में ना तो कोई आप डेटा दिए ना तो कोई आप फंक्शन दिए, तो आप सिंपल पास लिख देंगे तो ये इसको इग्नोर कर देगा। मतलब आपको नहीं तो एरर दे देगा, आपको बोलेगा आप जो कार क्लास लिखे उसका कुछ लिखिए, क्योंकि क्लास कभी खाली जा नहीं सकता। क्लास के अंदर इधर फंक्शन रहेगा नहीं तो डेटा रहेगा। अगर हम कुछ लिख नहीं रहे तो हमको पास लेके इसे छोड़ना पड़ेगा। सो वेरी नेक्स्ट मोमेंट विल डिस्कस अबाउट आउटपुट्स, जो ये प्रोग्राम का जो इतना आउटपुट्स आया है ये कैसे आया है। देखिए फिर कार वन, बोट वन, प्लेन वन, ये तीन ऑब्जेक्ट हम बनाए। और जो कार वन वाला ऑब्जेक्ट बनाए वो कार क्लास का बनाए, बोट वन वाला जो ऑब्जेक्ट बनाए वो बोट क्लास का बनाए, और प्लेन वन का ऑब्जेक्ट जो प्लेन क्लास का बनाए। तो सभी के ऑब्जेक्ट बनने के बाद, ये ऑब्जेक्ट बनने के बाद वैल्यू भी इनिशियलाइज हो गया, बोट का भी वैल्यू इनिशियलाइज हो गया, और प्लेन का भी वैल्यू इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद हम एक्स लूप डाल के फॉर एक्स इन कार वन, बोट वन एंड प्लेन वन, हम प्रिंट करवा दे रहे हैं एक्स डॉट ब्रांड को और एक्स डॉट मॉडल को। उसके बाद मूव कर दे रहे हैं, ये मूव वाला फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं। तो ये जो मूव वाला फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं ये हो गया, इसमें मूव हो गया फ्लाई, इस मतलब देखिए फॉर मुस्टैंग मूव, उसके बाद सेल, उसके बाद फ्लाई। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्लास का नेम है, और क्लास डिफरेंट डिफरेंट क्लास का नेम है, लेकिन उसके अंदर जो मूव वाला फंक्शन है वो फंक्शन का नाम सेम है। हियर द नेम्स आर सेम। तो इस दौरान दीज आर द आउटपुट्स व्हाट इज वी आर गेटिंग।
सो आपको पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन क्या याद रखना पड़ेगा? पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन ये याद रखना पड़ेगा. Polymorphism is opposed using class methods where we can have multiple classes with same method name. इसका मतलब हो गया ये मल्टीपल क्लास हमारे पास है. देखिए व्हीकल की क्लास है, उसके बाद कार का एक क्लास है, उसके बाद फूड, तो चार क्लास है. चार क्लास में आपको एक ही फंक्शन, जो भी फंक्शन देखिएगा मूव लिखा हुआ है, ये सभी क्लास में सेम फंक्शन लिखा हुआ है, लेकिन उसका काम अलग है. ये पर काम अलग है, यहाँ पर काम अलग है. ये तो यू व्हाट यू कैन से यू आर यूजिंग सेम फंक्शंस इन डिफरेंट क्लासेस and the same function, and the name of the function is move. Name of the function is move. Name of the function is move. That means we can have multiple class with the same method name. अब देखिए तीन क्लास का एक ही मेथड नेम हो गया. अगर हम एक हम ये जो मेथड को कॉल करेंगे तो कौन सा वाला मेथड कॉल होगा, मतलब ये वाला मेथड कॉल होगा ना, ये वाला मेथड कॉल. तीन मूव है, ठीक है. ये हो गया फास्ट वाला मेथड, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला. तो ग्रेजुअली देखिए कार फास्ट, कार वन कार का ऑब्जेक्ट है, तो ये ये कॉल हो जाएगा और मेरा मूव प्रिंट होगा. देखिए यहाँ मूव प्रिंट हो रहा है. उसके बाद बोट वाला, बोट वन जो है ऑब्जेक्ट बोट का, तो सेकंड वाला प्रिंट होगा सेल. तो देखिए सेल प्रिंट हो रहा है. और थर्ड में प्रिंट हो जाएगा मेरा फ्लाई. तो फ्लाई प्रिंट हो रहा है. तो जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, मतलब का जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है ना, वो क्लास का ही वो मूव फंक्शन एग्जीक्यूट हो जा रहा है. तो दिस इज द एग्जांपल. यू कैन practice also. Just write the program and check whether these outputs are coming or not. Okay. So in the meantime, you just go through practicing some important concepts of class and objects which I discussed now. Polymorphism and inheritance. Okay. Polymorphism and inheritance, because इंटरव्यू हो गया और कहीं पे भी ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट डू मीन बाय पॉलीमॉर्फिज्म and what do you mean by inheritance in class and object concepts, and what is the full form of OOP? If a question will come like this, then it is nothing but object oriented programming. I hope I could be able to discuss the concepts of class and objects, polymorphism, inheritance clearly, and I would request also to keep practicing and to keep learning. Thank you for watching. See you in the next class.